सुप्रभात। इस सेशन में हम अपने एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखेंगे। Now we continue. स्टार्ट। The servants lived in a series of low whitewashed out buildings at the back of the house, and as we came running around the corner, we saw 4 or 5 houseboys leaping about and pointing and shrieking, "Simba! Simba! Simba!" The boys were all clothed in spotless white cotton robes that looked like long night shirts, and each had a fine scarlet tarbush on his head. The tarbush is a sort of top hat without a brim, and there is often a black tassel on it. The women had come out of their huts as well and were standing in a separate group, silent and staring. सभी सेवक घर के पीछे एक श्रृंखला में बने चूने से पुते हुए छोटे घरों में रहते थे, और जैसे ही हम दौड़ते हुए घर के कोने पर पहुँचे, हमने देखा कि 4-5 घर में काम करने वाले लड़के इधर उधर इशारे करते हुए कूद रहे थे और चीख रहे थे, "शेर! शेर!" उन लड़कों ने बेदाग सफ़ेद सूती पोशाकें पहन रखी थी, जो रात्रि पहर पहने जाने वाली लंबी नाइट शर्ट की तरह लग रही थी, और हर एक के सर पर एक लाल तरबूज रखी थी। तरबूज का एक प्रकार का लंबा या ऊंचा हैट होता है, जिसका कोई किनारा नहीं होता, और अक्सर इन पर एक काली लटकन होती है। औरतें भी अपनी झोपड़ियों से बाहर आ गई थी और एक अलग समूह में खड़े होकर यह सब मूक देख रही थी। "Where is it?" Robert Sanford shouted. But he had no need to ask, for we were very quickly spotted the massive sandy-colored lion, not more than 80 or 90 yards off and trotting away from the house. He had a fine bushy collar of fur around his neck, and in his jaws he was holding the wife of the cook. The lion had the woman by the waist, so that her head and arms hung down on one side and her legs on the other, and I could see that she was wearing a red and white spotted dress. The lion, so startlingly close, was moving away from us in the calmest possible manner, and behind the lion, not far, ran the cook himself in his white cotton robe and a tarbush on his head. He was running most bravely and waving his arms like a whirlwind, leaping, clapping his hands, screaming, shouting. "Simba! Simba! 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 Let go of my wife! Let go of my wife!" Oh, it was a scene of great tragedy and comedy, both mixed up together. And now Robert Sanford was running in full speed after the cook, who was running after the lion. He was holding his rifle in both hands and shouting to the cook, "Pingo! Pingo! Get out of the way, Pingo! Lie down on the ground so I can shoot Simba! You are in my way! You are in my way, Pingo!" "कहाँ है वह?" रॉबर्ट सैनफोर्ड चिल्लाए, पर उन्हें यह पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शीघ्र ही उन्होंने उस रेतीले रंग के विशाल शेर को देख लिया, जो 80 या 90 गज की दूरी से अधिक नहीं था और मन गति से घर से दूर जा रहा था। उसकी गर्दन की चारों तरफ एक सुंदर घने रोएदार बालों का कॉलर था, और उसने अपने जबड़े में रसोइये की पत्नी को जकड़ रखा था। शेर ने रसोइये की औरत को उसकी कमर से अपने जबड़े में दबोच रखा था, जिससे उसका सर और उसकी बाहें एक ओर को झूल रही थी तथा टांगें दूसरी ओर को, और मैं देख सकता था कि उसने लाल और सफ़ेद गोलाकार बिंदु वाली ड्रेस पहन रखी थी। वह शेर चौंका देने वाली नज़दीकी पर था और बड़े ही शांत चाल से हमसे दूर जा रहा था। उसके पीछे कुछ ही दूरी पर रसोइया अपने सफ़ेद सूती पोशाक और सर पर तरबूज पहने भाग रहा था। वह काफ़ी साहस के साथ भाग रहा था और अपने हाथों को बवंडर की तरह हिला रहा था। साथ ही साथ कूद कूद कर ताली बजाते हुए चीख चिल्ला रहा था, "शेर! शेर! 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 मेरी पत्नी को छोड़ दे!" आह! यह सारा दृश्य एक मिला जुला महान त्रासदी और साथ ही हास्यपूर्ण दृश्य की तरह लग रहा था। और अब रॉबर्ट सैनफोर्ड अपनी पूरी गति से रसोइये के पीछे भाग रहे थे, जो कि शेर के पीछे भाग रहा था।
उन्होंने अपने दोनों हाथों में राइफल पकड़ रखी थी और रसोइये को चिल्लाकर कह रहे थे, पिंगो पिंगो, रास्ते से हटो पिंगो, ज़मीन पर लेट जाओ ताकि मैं शेर को गोली मार सकूं। तुम मेरे निशाने के रास्ते में हो, तुम मेरे निशाने के रास्ते में हो, पिंगो। But the cook ignored him and kept on running, and the lion ignored everybody. He kept moving ahead with the head held high and carrying the woman proudly in his jaws, rather like a dog that is trotting off with a good bone. पर रसोइये ने उन्हें अनसुना कर दिया और भागता रहा। वही शेर ने सबको अनसुना कर दिया। वह लगातार आगे को अपना सर ऊंचा किए हुए और औरत को गर्व से अपने मुंह में दबाए हुए बढ़ता रहा, बल्कि सही कहें तो ऐसे जैसे कोई एक कुत्ता अपने मुंह में एक अच्छी हड्डी दबाए मस्त चाल में चलता है। कॉम्प्रहेंशन चेक 2। वेयर डिड द सर्वेंट्स लिव? वो सेवक कहाँ रहते थे? The servants lived in a series of low whitewashed outbuildings at the back of the house. सभी सेवक घर के पीछे एक श्रृंखला में बने चूने से पुते हुए छोटे घरों में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2। What is tabush? Tabush क्या है? The tabush is a sort of top hat without a brim and there is often a black tassel on it. Tarbush एक प्रकार का लंबा या ऊंचा हैट होता है जिसका कोई किनारा नहीं होता और अक्सर इन पर एक काली लटकन होती है। क्वेश्चन नंबर 3। What was the cook's wife wearing? रसोई की पत्नी ने क्या पहना हुआ था? आंसर। The cook's wife was wearing a red and white spotted dress. रसोई की पत्नी ने लाल और सफ़ेद गोलाकार बिंदु वाली ड्रेस पहन रखी थी। ओके आओ बच्चों अब कॉम्प्रहेंशन चेक 2 से आगे पढ़ें। The lion was heading for one of those hillocks that was densely covered with jungle trees, and we all knew that once he got in there, we would never be able to get at him. The incredibly brave cook was actually catching up on the lion and was now not more than 10 yards behind him, and Robert Sanford was 30 or 40 yards behind the cook. The cook was shouting, Simba, 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 let go of my wife. I am coming after you, Simba. Then Robert Sanford stopped and raised his rifle and took aim, and I thought surely he is not risking a shot at a moving lion when it's got a woman in its jaw. There was an almighty crack as the big gun went off, and I saw a spurt of dust just ahead of the lion. The lion stopped dead and turned his head, still holding the woman in his jaws. He must have thought an army was coming after him, because instantaneously he dropped the cook's wife onto the ground and ran into the jungle. I have never seen anything accelerate so fast from a standing start. The cook reached the wife first, then Robert Sanford, then me. I couldn't believe what I saw. It was certain that the grip of those terrible jaws would have ripped the woman's waist and stomach almost in two. But there she was, sitting up on the ground and smiling at the cook, her husband. शेर उस पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जो कि घने जंगलों से आच्छादित था, और हम सबको यह ज्ञात था कि एक बार वह शेर वहां अंदर पहुंच गया तो हम फिर कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अविश्वसनीय रूप से साहसिक रसोइया वास्तव में अब शेर के करीब पहुंचता जा रहा था, और अब वह शेर से 10 गज से ज़्यादा की दूरी पर नहीं था। रॉबर्ट सैनफोर्ड रसोइये से अब 30 या 40 गज की दूरी पर पीछे थे। रसोइया चिल्ला रहा था, शेर शेर, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ शेर। तभी रॉबर्ट सैनफोर्ड रुक गए और अपने राइफल को ऊपर कर उन्होंने निशाना साधा। मैंने मन ही मन सोचा कि वो चलते हुए शेर को गोली मारने का खतरा नहीं उठाएंगे, जबकि वो औरत उसके जबड़े में है। एक सर्वशक्तिशाली आवाज़ के साथ बंदूक से गोली छूटती है और मैं ठीक शेर के सामने एक गर्द का गुबार देखता हूँ। शेर एकाएक रुक जाता है और अपना सर घुमाकर देखता है। औरत अभी भी उसके जबड़े में थी। उसे ज़रूर ऐसा लगा होगा कि पूरी एक फौज उसके पीछे आ रही है।
उन्होंने उसी क्षण वह रसोइये की पत्नी को ज़मीन पर गिरा देता है और जंगल में भाग जाता है। मैंने किसी को भी इतनी जल्दी खड़ी मुद्रा से इतनी तीव्र मुद्रा में परिवर्तित होकर भागते पहले कभी नहीं देखा। रसोइया अपनी पत्नी के निकट पहले पहुंचता है और तब रॉबर्ट सैनफोर्ड तथा उनके पश्चात मैं। जो मैंने देखा, मुझे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। यह तो एक तरह से निश्चित था कि उन भयानक जबड़ों की जकड़ ने उस औरत के कमर और पेट को 2 हिस्सों में फाड़ डाला होगा, पर यहाँ तो वह ज़मीन पर उठकर बैठी हुई थी और अपने रसोइये पति की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। "Where are you hurt?" shouted Robert Sanford, rushing up. The cook's wife looked up at him and kept smiling, and she said in Swahili, "That old lion, he couldn't scare me. I just lay there in his mouth pretending I was dead, and he didn't even bite through my clothes. He carried me as gently as if I had been one of his own cubs. But now I shall have to wash my dress." "तुम्हें कहाँ चोट लगी है?" रॉबर्ट सैनफोर्ड जोर से चिल्लाते हुए पास पहुंचे। रसोइये की पत्नी ने उनकी ओर मुख उठाकर देखा और मुस्कुराती रही और फिर जबान में बोली, "वो बूढ़ा शेर मुझे डरा नहीं सका। मैं बस उसके मुंह में मरने का नाटक करके पड़ी रही और उसने उसके कपड़े तक को काट कर नहीं फाड़ा। उसने मुझे बड़े ही धीरे और प्यार से उठा रखा था, जैसे कि मैं उसकी ही शावकों में से एक शावक हूँ। पर अब मुझे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे." Comprehension check 3. Question number 1. Why was Robert Sanford shouting at the cook? Robert Sanford रसोइये पर क्यों चिल्ला रहे थे? Robert Sanford was shouting at the cook because he wanted to shoot the lion, but he was coming in his way. Robert Sanford रसोइये पर इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि वो उस शेर को गोली मारना चाहते थे और रसोइया उनकी राह में आ रहा था। Question number 2. What made the lion stop? वो शेर क्यों रुक गया? The lion stopped at the sound of the firing of the big gun. वह शेर गोली की आवाज़ सुनकर रुक गया। Question number 3. Was the lady cook's wife hurt? क्या रसोइये की पत्नी को चोट पहुंची थी? Answer. No, the lady cook's wife was not hurt. नहीं, रसोइये की पत्नी को चोट नहीं पहुंची थी। That's all. Thank you.